जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। So, hello everyone, and today we are going to discuss or have a brief discussion or brief introduction regarding the Constitution of India. And it is a very interesting subject for CLAT preparation, and the reason is because it has a very high percentage of weightage. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, but you have to understand ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. Do not have to read the whole Constitution of India. You have to be very selective, precise, and accurate. And how you will be accurate, we'll discuss upon it. So let's start. Constitution of India. So this Indian Constitution being particularly divided between two parts. Though it contained 22 parts, but it mainly divided into two parts. First part is like fundamental rights. Fundamental rights. Director principle state policy. And fundamental duties. Fundamental duties. And second part, which we usually talks that Indian polity. Indian polity. Indian polity. In which we have or we usually discuss Supreme Court, High Court, Legislature, Executive, like judiciary. Legislature first, second executive, and third judiciary. Judiciary. These are the very three important wings of the Indian Constitution in order to run the nation. But we have to understand what's the role of this legislative, executive, and judiciary. Because if you see the previous year question papers of CLAT UG exam, in majority of cases, in majority of years, you will find the question from legislature, executive, and judiciary. For that end, you have to understand that what's their role. So let's discuss. We'll divide a line. Legislature. Second is executive. Third is judiciary. Now, what is meant by legislature? It doesn't only means that legislature of a state or the parliament. No. Legislature means those persons, those elected members, either of the state or of the union, who make the laws. Who make the laws. It doesn't mean that all the members of parliament or all the members of legislative assemblies in a state makes the laws. That's a wrong perception, that's a wrong notion. Only those member of parliament and only those member of legislative assemblies in the state make the laws who are not the part of executive. This is the right answer. What I just said? Elected representative elected representatives of the
parliament or the state legislatures who are not the part of executive. दिस इज द राइट आंसर. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग वोट करते हैं, स्टेट असेंबलीज हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, जिनको हम लोग वोट करते हैं, और उस वोट करने में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज बनते हैं उनको लेजिस्लेचर का पार्ट माना जाता है, जो लॉज फ्रेम करते हैं. जैसे हम लोग जो लॉ पढ़ते हैं, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लाइक लॉ ऑफ टॉट, सो ये कौन पास करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर स्टेट लॉ है तो लोकल लॉ है तो. बट अमंग्स दीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स देयर आर सम मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड, जिनको हम लोग वोट करते हैं लेकिन वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते. दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी. दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी. Executive does not means bureaucrats. Executive does not only means bureaucrat, though it includes bureaucrats like IAS officers, but it does not only means. It also means those member of parliaments or those legislative assemblies members which are the part of council of ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज अगर 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपने इलेक्ट करे, उसमें से 15% मेंबर, मतलब कि 15 मेंबर्स क्या होंगे? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन जाएंगे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन जैसे कि क्या होता है ना, जैसे आप देखते हो जो बहुत सारे मिनिस्टर्स, कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर. ये कौन है? दे आर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो आप इलेक्ट तो एमएलएज और एमपीज को करते हो डायरेक्ट, लेकिन उनमें से कुछ एमएलएज एंड एमपीज को मेंबर ऑफ या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया जाता है, जिनको एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज होल्ड करने को दे दी जाती हैं. या दैट यू हैव टू होल्ड दीज मिनिस्ट्रीज, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ ministers. Council of ministers. That's why they are called as council of ministers. They are not the part of legislature. They are not the part of legislature. They are the part of executive. The role of legislature is to make the law. What is the role of legislature? To make the law. What could be the role of executive? To implement the law. To implement the law. And what is the role of judiciary? To interpret the law. To interpret the law. To interpret the law. That's their role. Now, if we talk about the executive, it consists of council of ministers. जो मैंने बताया कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में से कुछ मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाता है. 15 मैक्सिमम जो होंगे 15% होते हैं. मैक्सिमम इट वुड बी 15%. सेकंड कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स हो गए. ब्यूरोक्रेट्स bureaucrats. And judiciary, Supreme Court, High Court, and subordinate judiciary. Subordinate judiciary. Now, let's proceed further. How the law is passed.
दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में. हाउ अ बिल, या फिर अगर और लीगल लैंग्वेज में इसको बात करूं, हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट. एक बिल कैसे एक एक्ट बनता है. सिंपल. बिकम्स एन एक्ट. दिस इज अ क्वेश्चन. What you recently have seen, ये जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, BNS, BNSS एंड BSA, दैट मींस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए हैं. कैसे पास हुए? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है, उन्होंने लॉ फ्रेम किया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट को एसेंट मिली. लेकिन जितना सिंपल ये सुनने में लगता है, उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट मच सिंपल व्हाट वी अंडरस्टूड. अंडरस्टैंड. सपोज अ बिल बीइंग पास्ड इन लोकसभा. लोकसभा. अच्छा, लोकसभा को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल. हाउस ऑफ द पीपल. हाउस ऑफ द पीपल. Thereafter, when the bill being passed into the Lok Sabha, अच्छा ऐसा नहीं है कि बिल लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा. इट कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट द मनी बिल, जो हम लोग लेटर क्लासेस में पढ़ते हैं. मनी बिल छोड़ दिया जाए. मनी बिल का मतलब होता है जो टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ मैटर्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैटर होता है, उनको छोड़ दिया जाए. तो बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा. बट जनरली द बिल गॉट पास इनटू द लोकसभा. जनरली लोकसभा में पास होता है बिल. ठीक है, अब समझना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिल बीइंग पास इन लोकसभा, देन इट प्रोसीड फॉरवर्डेड टू द राज्यसभा. फिर वो राज्यसभा में डिस्कशन होता है उसका. राज्यसभा में अराउंड, लोकसभा में मेंबर्स हैं आपके 545 मेंबर्स, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. इसमें 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट होंगे. लेकिन बाकी 525 मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जो लोग हम लोग वोटिंग करते हैं. राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स. अच्छा, जब बिल लोकसभा से राज्यसभा में पास होता है, आफ्टर दैट बिल कहां पे जाएगा? फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट. फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास. फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास एसेंट लेने जाता है कि भाई प्रेसिडेंट, जब तक बिल के ऊपर सिग्नेचर प्रेसिडेंट का नहीं होगा, प्रेसिडेंट का वो जो बिल है वो अपना एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. Till the time the president has not signed upon the bill would not be converted into an act. It is mandatory to convert the bill into an act, and for that, in order to convert a bill into an act, it is mandatory to have the signature of the president. Now the question arose, next question arose, whether the president will independently or, if we write this question in a better form, whether the president will give assent over that bill independently, or the president needs the aid and advice of Council of
ministers. This is the question कि क्या प्रेसिडेंट का जो बिल प्रेसिडेंट के पास आया है, प्रेसिडेंट हैज द डिस्क्रिशन कि ठीक है जो मुझे सही लगेगा मैं साइन करूंगा या नहीं करूंगा, इट्स माय विल, और द प्रेसिडेंट इज और हैव टू टेक द कंसेंट और द एसेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको यहां बताया था, यहां पे दिस तो कितने नहीं होने चाहिए, which should not be more than 15%. बताया था ना अभी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट बी मोर देन 15%. 15% ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मींस दैट जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. अच्छा, प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का. जुडिशरी का तो हो ही नहीं सकते, वहां के तो जज तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है. या लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का है. द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का पार्ट है प्रेसिडेंट. नाउ क्या प्रेसिडेंट, अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका पार्ट? एग्जीक्यूटिव का. ठीक है, तो बिल पास किसने किया? लेजिस्लेचर ने. लेजिस्लेचर पास किया ना बिल. अब वो बिल किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास आया. अब क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट को क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी? वेदर द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और नॉट? आंसर इज यस. यस. President is bound to take the aid and advice of the Council of Ministers before giving assent to any bills. Before giving any assent to any bills, it is very much mandatory to take the assent, to to have the discussion with the Council of Ministers and to act upon the aid and advice of the Council of Ministers. Without that, the president cannot independently sign upon the bill without obtaining the aid and advice of the Council of Ministers, which should not be more than 15%. So if we write an answer, the answer is the president cannot give an assent over the bill without obtaining the aid and advice of the Council of मिनिस्टर्स. आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एडवाइस लेनी पड़ेगी. इट इज वेरी मच मैंडेटरी. विदाउट डेट नहीं पास हो सकता बिल, नहीं पास हो सकता. यू हैव टू टेक द कंसेंट, यू हैव टू टेक द असेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब अगर यहीं पर स्टेट की बात करें कि स्टेट में कैसा होता है, सेम. वहां पे प्रेसिडेंट की जगह क्या हो जाएगा? गवर्नर. बस गवर्नर. सो नाउ इन दिस केस, इन द सेम केस, अगर स्टेट की बात है, द गवर्नर. अच्छा, क्वेश्चन है, क्या गवर्नर को भी एड एंड एडवाइस लेने की जरूरत है? हां, लेकिन कुछ केसों में नहीं है. कुछ केसों में नहीं है. जहां पे हाई कोर्ट की पावर इंटरफेयर हो रही है, वहां पे उसको एड एंड एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है. नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. नॉट रिक्वायर्ड. So the answer is the governor is, or the governor also cannot pass any bill without obtaining the aid and
advice of the Council of Ministers except in certain cases like where the power of the High Court is affected. पावर ऑफ हाई कोर्ट इज अफेक्टेड. डेट मीन्स क्या जिन केसों में हाई कोर्ट की पावर अफेक्ट कर रहा है कोई भी लॉ, उसमें गवर्नर को प्रेसिडेंट से, गवर्नर इज नॉट बाउंड टू टेक टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. उसमें गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन करके. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द गवर्नर ऑल्सो हैव टू टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि स्टेट के होंगे, इन ऑर्डर टू पास अ बिल. अब रिसेंट में ही, अब क्वेश्चन कहां से आएगा वो समझ लीजिए. बस रिसेंट में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था जिसमें कि प्रेसिडेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक ओपिनियन मांगा था कि क्या गवर्नर जो हैं वो कितने टाइम तक बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं. फॉर हाउ मच टाइम अ गवर्नर कैन विदहोल्ड बिल. विदहोल्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिल गवर्नर के पास आए कि भाई आप इस पे सोच विचार करो एंड यू हैव टू गिव द एसेंट, तो गवर्नर उसको कितने टाइम तक होल्ड कर सकता है. ये फाइल हुआ क्योंकि बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो गवर्नर के पास होल्ड पे रखे हुए हैं लेकिन गवर्नर उस पर कोई डिसीजन या कोई उस पर एसेंट नहीं दे रहे. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट देयर इज नो टाइम लिमिट. There is no time limit for the governor to give assent. कितने भी टाइम वो होल्ड कर सकता है. बट एक और चीज ऐड करी सुप्रीम कोर्ट ने, बट डेट time should be a reasonable time. क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप होल्ड तो कर सकते हो उस बिल को, बट एक रीजनेबल टाइम तक. It does not mean that you are holding the bill for a very long time and you are not giving the assent. Neither you are rejecting it nor you are giving assent. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर. बट इन दैट केस द गवर्नर हैव आल्सो टू एक्ट रीजनेबली एंड द गवर्नर कैन नॉट होल्ड द बिल फॉर एवर. एग्जैक्ट ये लाइन बोली है सुप्रीम कोर्ट ने. क्या? द गवर्नर कैन नॉट होल्ड द बिल फॉर एवर. दैट मीन्स ही हैड टू एक्ट रीजनेबली. He should give the assent within a reasonable time. ये नहीं क्या सालों तक उसके पास होल्ड पर ही है, even because no time limit has been mentioned in the Constitution of India under Article 201 and 200 that in how much time the governor has to give assent. So the governor should not take the undue advantage of this article. And though we are not interfering upon the decision of the governor, but the governor should not hold the bill forever and the governor should act within a reasonable time. So last Supreme Court ने क्या बोला इसमें? The governor should act within a reasonable time. यहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपको, बिकॉज इट इज अ रीसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड दिस इज वाई
And this is how you have to prepare for the CLAT UG exams. So what we have discussed in today's demo class, we have discussed this one. We have discussed this one. Legislature, executive and judiciary. Legislature who makes the law, executive who interprets, usually not interpret, execute the law, and the judiciary is who interprets the law. But the main role is of executive, because executive से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपसे executive से पूछे गए. So this is all what we have discussed, and you have to prepare in that direction in which we have discussed in the class. Thank you very much. Thank you. Subscribe for more content.